Good morning, students. Today we are going to discuss some numerical problems related to this chapter of motion. So these are the questions we are going to discuss now. So take a screenshot of these questions for your reference. Now let's begin. The question number 1 is: a train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration and the distance traveled by the train for maintaining this velocity. So whenever you do any kind of problem, first of all you have to write down all the things which are given in the question. So what is given? A train starts from rest. That means its initial velocity is given, that is 0. So u is equal to 0, and attains a velocity of this in 5 minutes. So this is your final velocity, that is v is given, and time is given, that is 5 minutes. Okay, so these are the things which are given. So first of all you have to write down this. So initial velocity is 0, time 5 minutes. So you have to convert this 5 minutes into seconds. So that will be a 300 seconds. Now final velocity is given, that is 72 km per hour, but this is not in standard form. Standard form is meter per second, so you have to convert it into meter per second. So in that case you have to multiply it by 1000 and divide it by 3600. Now what you have to find out? You have to find out the acceleration. So as you know that we have studied all the laws of all the three equations of motion. So we have to apply those equations of motion in order to solve this question. So basically what we have to find out? We have to find out the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity, that is a and s. So these are the three equations of motions. So tell me which equation is going to be used to find out acceleration, because initial velocity, final velocity and time is given and we have to find out a. So initial velocity, final velocity and time is given, so we have to find out a. So the first equation of motion can be used in this case. So we will go for first equation of motion. Clear है? अब देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्यों यूज नहीं कर सकते? इसमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन हमें निकालनी है और एस डिस्टेंस भी हमें नहीं पता. तो इसमें दो वेरिएबल ऐसे हैं जो हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते. सिमिलरली द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन ऑल्सो बी कैन नॉट बी यूज्ड, बिकॉज इन दिस ऑल्सो वी हैव टू अननोन वेरिएबल्स, दैट इज एक्सेलरेशन एंड displacement. So we will go for equation first, that is v equals to u plus at. So with the help of first equation of motion we can find out the acceleration by putting all these values of v, u and t. So the acceleration will be 1 upon 15 meter per second square. Now since we got the value of acceleration, so you can use any of these two equations. Either you can use second equation of motion or you can use third equation of motion to calculate the displacement. So you can use any of these two equations. So in this question we have used s equals to ut plus half of at square, that is second equation of motion. So putting all these values in this, the displacement will come out as 3000 meter. So this is your first question. Now next is: a car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate the acceleration. So a car accelerates uniformly from this to this. So this is your initial velocity and this is your 36 km per hour is your final velocity, and time is given 5 seconds. So which equation you are going to use? So first of all write down the all those things which are given in the question. That is, initial velocity is given, so first of all you have to convert it into meter per second. So 18 km per hour will be equal to 5 meter per second, and similarly final velocity, that is 36 km per hour, will be equal to
10 meter per second. Again, time is also given, that is 5 seconds. Now tell me which equation you are going to use to find the acceleration. So same, you will go for first equation of motion. So time is given, you have to find out the acceleration and displacement. It is similar to the previous one. So acceleration you will got 1 meter per second square, and in order to find out the displacement, you can use any one of these two equations. Either you can use second equation of motion, or you can use third equation of motion to find out the displacement, and your displacement will come out 37.5 meter. Isn't it? Now switch on to next question. That is, the brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second in the opposite direction to the motion. So the brakes are applied to a car producing an acceleration of this. So acceleration is given. If the car takes 25 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. क्या मतलब हुआ इसका कि कोई कार नॉर्मल स्पीड से चल रही है और उस दौरान उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। और फिर उसके ऊपर कुछ ब्रेक अप्लाई किया जाता है, और वो ब्रेक अप्लाई होने के बाद वो कार रुक जाती है। और कितनी देर के बाद रुकती है, 25 सेकंड्स के बाद। तो टाइम दे दिया, एक्सेलरेशन दे दी, फाइनल वेलोसिटी आ गई आपके पास। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि कार क्या हो गई, रुक गई, ठीक है। तो आप इनिशियल वेलोसिटी यहां पे आप निकाल सकते हो, ठीक है। और कैलकुलेट क्या करना है इसमें, कैलकुलेट द डिस्टेंस इज ट्रेवल ड्यूरिंग, और हमें देखना है कि उस दौरान कितना डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी। ब्रेक अप्लाई, ऐसे तो है नहीं कि ब्रेक अप्लाई होते ही गाड़ी रुक जाए, कुछ टाइम लगेगा। कितना टाइम लग रहा है, 25 सेकंड लग रहे हैं। तो 25 सेकंड के बाद वो गाड़ी रुकती है, तो इस दौरान वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो आप इसमें दो चीजें निकाल सकते हो, तो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से पहले आप इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो इसमें, ठीक है ना। तो देखिए एक्सेलरेशन दे दी इसमें। तो देखिए अब एक्सेलरेशन क्या है, एक्चुअल में ये रिटार्डेशन है, क्योंकि हम जब ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, धीरे हो रही है। तो इसका मतलब ये कौन सी एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पे रिटार्ड हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो रिटार्डेशन, तो ये -6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ये -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी एक्सेलरेशन गिवन है। टाइम गिवन है कितना, 2 सेकेंड्स, सॉरी ये 25 सेकेंड्स होगा। इफ द कार टेक्स 25 सेकेंड्स टू स्टॉप, 25 हो गए। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी, कोई गाड़ी रुक गई, आपको एस की वैल्यू निकालनी है। तो सेम आप इक्वेशन ऑफ ये यूज कर सकते हो, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू आप निकाल सकते हो, a की वैल्यू -6 है, टाइम यहाँ पे 2 सेकेंड है। तो सॉरी गाइज, ये जो है 25 सेकेंड नहीं है, ये 2 सेकेंड है, ठीक है ना। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये 2 सेकेंड है। तो यहाँ पे आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी आती है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, आप इन दोनों में से आपके पास एक्सेलरेशन है, टाइम भी है और इनिशियल वेलोसिटी भी है। तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हो। आपके पास फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो आप एस निकाल, तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हो। दोनों आप कोई से भी यूज कर सकते हो आप इसमें। तो इन्होंने कौन सी यूज की है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की है। सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है और ये सॉल्व करना है। सो योर डिस्प्लेसमेंट विल कम आउट एज 12 मीटर। नाउ सिमिलरली वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस आल्सो। Okay, the question is, what is the nature of the distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको समझाना है, मतलब ग्राफिकली आपको समझाना है कि कैसा होगा। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है, लीनियर होता है। ये देखिए इस तरीके से लीनियर ग्राफ आएगा आपका, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस वेयर डिस्टेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन unequal time intervals, or we can say where an object covers unequal distance in equal time intervals. तो unequal distance कवर करेगा equal time intervals के अंदर। तो unequal distance दो तरीके से कवर कर सकता है, या तो स्पीड बढ़ेगी या फिर स्पीड घटेगी। तो दो केस ले लिए इसमें,
ठीक है ना। तो दिस इज द केस वेयर स्पीड इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड दिस इज द केस वेयर स्पीड इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। ये दो ग्राफ है, तो ग्राफ से भी आप समझा सकते हो कि ये ग्राफ कैसे नॉन यूनिफॉर्म है। तो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ वेयर स्पीड इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड दिस इज अगेन द नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ वेयर स्पीड इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एंड दिस वन इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ग्राफिकली भी आप चीजों को समझा सकते हो, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी है। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। आप क्या समझते हो, अगर कोई भी ग्राफ है जिसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जिसमें जो स्लोप आ रहा है वो कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रही है पैरेलल किसके, टाइम एक्सिस के। तो ये कब होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट किस पे हो, रेस्ट पे हो, ठीक है ना। तो इट मीन्स दैट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है चेंज ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और यू कैन से द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे ये भी स्पीड टाइम ग्राफ की हेल्प से आपको बताना है कि अगर स्ट्रेट लाइन अगर आ रही है टाइम एक्सिस के, अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है पैरेलल, तो कैसी होगी मोशन। तो ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी होगी, द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्मली इट हैज ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना, यूनिफॉर्म स्पीड होगी उसकी। सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर मान लीजिए कोई स्लोप आ रहा है हमारे पास, तो उस स्लोप के नीचे जो एरिया आएगा वो एरिया किसका होगा। तो ये हम डेरिवेशन भी कर चुके हैं पीछे, वो एरिया हमें क्या बताता है। अब देखो वेलोसिटी और टाइम आ गया तो कौन सा फैक्टर गायब है इसमें, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो वो एरिया हमें क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, और जो स्लोप है वो हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी टाइम है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यानी कि एक्सेलरेशन भी हम निकाल सकते हो। तो एक्सेलरेशन कौन सी होगी, वो जो स्लोप आता है और उस स्लोप के नीचे जो एरिया आता है वो एरिया क्या निकालता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें ये पूछा गया कि एरिया जो ऑक्यूपाइड हो रहा है उससे हम क्या मेजर कर सकते हैं। तो उससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired, the distance traveled. क्या मतलब हुआ कि ये बस जो है रेस्ट पे है और वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाती है और एक एक्सेलरेशन अटेन कर लेती है कितनी, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, 2 मिनट में, ठीक है। तो आपको उसकी स्पीड निकालनी है और डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ वो निकालना है। तो देखिए गिवन क्या क्या होगा इसके अंदर, बस क्या है, रेस्ट पे थी, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, एक्सेलरेशन आपको दे दिया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव ही है क्योंकि धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है गाड़ी की। अगर स्पीड कम हो रही होती तो नेगेटिव होता, लेकिन यह स्पीड बढ़ रही है तो पॉजिटिव रहेगा। टाइम कितना है, 2 मिनट है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 120 सेकंड हो जाएगा। निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है, यानी कि v निकालना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड s निकालना है। तो आप सबसे जब भी क्वेश्चन करते हो तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, गिवन, देन यू हैव टू राइट डाउन द थिंग्स यू हैव टू फाइंड आउट, देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। तो u इज गिवन, a इज गिवन, t इज गिवन, तो u इज गिवन, a is given, t is given, you have to find out the v. So you can go for first equation of motion. So applying v equals to u plus at, you will get final velocity as 12 meter per second. Next you have to find out the displacement. So you can use either of these two equations. You can go for second equation of motion, or you can go for third equation of motion to find out the displacement, and your displacement will come out as 720 meter, isn't it? Now switch on to next question. A train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of this. अब देखिए एक ट्रेन जो है इस स्पीड से चल रही है, ठीक है ना, तो ये इसकी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई। फिर उसके ऊपर हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया और उसकी एक्सेलरेशन जो है ये आ गई। तो आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो ये एक्सेलरेशन कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो यहां तो जैसे नेगेटिव दे ही रखी है।
अगर नहीं दी होती नेगेटिव के साथ तो आपको नेगेटिव साइन यूज करना पड़ता, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, ठीक है ना, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड घट रही है। नाउ व्हाट यू टू फाइंड आउट, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रोट टू रेस्ट। तो ट्रेन जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ट्रेन रुकेगी, लेकिन कुछ डिस्टेंस कवर करेगी ना उस दौरान, तो आपको डिस्टेंस निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 90 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी इज गिवन दैट इज 0, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे आ जाता है। एक्सेलरेशन इज गिवन, सो यू कैन इजिली फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट द यूनिट्स, that is initial velocity is given 90 km per hour, so you will get 25 meter per second after converting it. Acceleration is given, that is minus 0.5 meter per second square, and final velocity is given, that is 0. You have to find out the s. So tell me which equation you are going to use out of these three. You have to find out the s. U is given, t is not given ना, यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद टाइम। तो देखिए इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में टाइम दे रखा है, तो टाइम हमें टाइम है ही नहीं हमारे पास, तो फर्स्ट इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते। सेकंड इक्वेशन देखिए इसमें भी टाइम है, तो टाइम हमें दे नहीं रखा, तो ये भी आप यूज नहीं कर सकते। सो आप कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कर सकते हो, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 0, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u और इसमें 2a एक्सेलरेशन भी दे रखा है और s आपको निकालना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना, ये इस तरीके से। तो आपको s निकालना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। बाकी सब वैल्यूज पुट करनी है, सिंपली आपको ये सॉल्व करना है। सो योर डिस्प्लेसमेंट विल कम आउट एज 625 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? यानी कि कोई ढलान पे किसी ट्रॉली को छोड़ दिया गया है, तो जब छोड़ दिया गया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, टाइम आपको दे दिया है 3 सेकेंड, और एक्सेलरेशन भी आपको दे दी है। तो एक्सेलरेशन ये कौन सी है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही है, क्योंकि ढलान पे जब कोई चीज जाएगी तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये एक्सेलरेशन कैसी है, पॉजिटिव है। तो बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करोगे इन तीनों में से? आप इक्वेशन ऑफ फर्स्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि u दे रखा है, v निकालना है, a दे रखा है, t दे रखा है, सिंपली आप पुट करोगे और आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो रेसिंग कार की एक्सेलरेशन दे दी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स? 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी आफ्टर स्टार्ट, शुरू से? तो स्टार्टिंग वेलोसिटी यानी कि u कितनी दे रखी है, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट पे है, तो u दे दी, a की वैल्यू आ गई हमारे पास, और डिस्टेंस हमें निकालना है, टाइम आ गया। तो बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? टाइम दे रखा है, a हमें दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी u हमें दे रखा है, तो आप यहां से v निकाल सकते हो, पहली वाली इक्वेशन यूज कर सकते हो आप, तो इससे आपको v निकल जाएगा। फिर आप थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हो, उसमें v की वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो a दे रखा है, t दे रखा है, u दे रखा है, s आपको निकालना है, तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज की है, सेकंड इक्वेशन यूज कर ली इन्होंने डायरेक्ट, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, हाफ ऑफ a इंटू एक्सेलरेशन दे रखी है 4 और इंटू टाइम दे रखा आपको t, तो t स्क्वायर का हो गया 10 स्क्वायर, ठीक है ना। तो सिंपली आप सोल्व करोगे, सो योर डिस्टेंस विल कम आउट एज 200 मीटर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a stone is dropped in a vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक पत्थर को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं इस वेलोसिटी से, तो इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप इस स्पीड से उसको फेंक रहे हो, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
जीरो, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को ऊपर की तरफ उछालोगे तो एक टाइम, एक हाइट ऐसी आएगी जब वो रुक जाएगी और उसके बाद वो नीचे गिरना शुरू होती है, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे जीरो। और इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज इतना, अब ये एक्सेलरेशन है, जब ऊपर उछालते हो तो इस एक्सेलरेशन से उसको उछालो, तो आप ये बताइए कि एक्सेलरेशन कैसी होगी, पॉजिटिव है नेगेटिव? तो ये रिटार्डेशन है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछालेंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी ना, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन कौन सी है आपकी, रिटार्डेशन है, तो ये माइनस के साथ आप इसको यूज करोगे, ठीक है ना, नेगेटिव ए है ये। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट if the acceleration of the stone during its motion is itna in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? तो आपको क्या निकालना है, कितनी हाइट वो अटेन करेगा, कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो स्टोन जाएगा और कितना टाइम उसको लगेगा वहां तक पहुंचने में, तो दो चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए गिवन क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दे दी 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दे दिया, देखो नेगेटिव के साथ है, वो ऊपर जा रहा है तो ऐसे स्पीड कम होगी तो नेगेटिव के साथ। v मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक फाइनल हाइट पे जाके, मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या होगा, रुक जाएगा, तभी तो नीचे आएगा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी। s आपको निकालना है, t आपको निकालना है, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इन तीनों में से। तो u दे रखा है, a दे रखा है, टाइम आपको निकालना है और v भी दे रखा है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, ठीक है। और आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि v दे रखा है आपको, u दे रखा है और a दे रखा है, तो s आप यहां से निकाल सकते हो और t आप फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हो। तो आप फर्स्ट इक्वेशन भी यूज कर सकते हो इसमें, पहले आप टाइम निकाल लीजिए और उसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, ठीक है ना, तो कैसे भी यूज कर लो। तो इन्होंने पहले क्या निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, कितनी वो हाइट पे जाएगा, तो ये इक्वेशन यूज किया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, तो एस क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ दिस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, सिंपली वैल्यूज पुट की है, सोल्व करके कितना आ जाएगा ये 1.25 मीटर, तो ये तो हो गया हाइट, मैक्सिमम इतना डिस्टेंस कवर करेगा वो, फिर ठीक है। फिर टाइम कैसे निकालना है आपको, यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, तो इसमें t क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, तो ये वैल्यूज दे रखी हैं सारी, तो टाइम आपका कितना आ जाएगा 0.5 सेकेंड्स। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी एजुकेशन ट्यूटोरियल्स हैं, इनको अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हो इनको सुनने का, तो आप ईयरफोन यूज कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी एजुकेशन ट्यूटोरियल्स होते हैं अगर हम ईयरफोन यूज करके सुनते हैं तो वो अच्छे समझ में आते हैं और एक एक चीज हमें सुनाई क्लियरली देती है, ठीक है ना। अगर आप सिंपली वैसे सुनोगे तो आधी चीजें आपके कान में जाएंगी, आधी नहीं जाएंगी, ठीक है ना। एंड ए लैक ऑफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, सो कीप दिस थिंग इन माइंड whenever you listen to an educational tutorial, always use your earphones or headphones while listening to the video. Okay students, thank you very much.